Shazia Ilmi, how would you respond to those who are saying the JPC was a farce? You're bulldozing reforms. So there are many things I want to say, and I think JPC had 284 hours of meetings, and we all know what all transpired. We all know how Kalyan Banerjee threw glasses at some of the members, hitting out at the chairman just to, harass others. And we know all the tamasha that went on. The intention was that at any cost, we will not let the bill be enacted. So they had contention, they had a bone of contention over every issue. But the importance of Waqf and the need for amendment is so huge because this has only been like a disservice to the community they speak about. Just now, somebody just said, they don't know what they're doing to the community. I think you all also know that the Waqf properties and whoever the mutawallis are and the board is and the tribunal is, you all know that is being used to make money, to siphon funds, to embezzle, to sell land at cheaper rates for their own benefits and not to help the community whatsoever. I'm reading out in one of the cornerstones is concept of perpetuity. Now, if you use Waqf by user, how on earth can you take away all the lands which has been usurped by some in the name of Waqf, saying it is the land of the divine and it will be used by the mutawallis and the board? Also, who will be in charge and responsible for the demarcation, for the usage, for the property rights, for the registration, and to ensure that it has not been achieved, it has not been, seized through force or coercive action. And not just that, the whole idea of Waqf is charity, is justice. That's right. For Awqaf, for the purpose of Awqaf. And in fact, I really hail the new bill and what this government is doing, because there is provision to help divorced women, children, and that will be part of the Waqf trust, which is the idea all along, and not for Amanatullah Khans of the type to make money and to launder money, to sell properties and do what they please with what they call Waqf. Yeah, because it will not be used by land mafia at all. You've had a free run kind of situation. जिसका जो मर्जी आया उसने बोला ये जमीन हमारी है, from parliament to Taj Mahal to what not, everything is what property. हर्षवर्धन जी, अब जब ये जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, सरकार ने उसको लिस्ट कर दिया है कि अब हम बजट सेशन में इसको टेबल करेंगे, फिर उसके बाद ये चिट्ठी आती है, इसमें बोल रहे हैं द गवर्नमेंट शुड नॉट टेस्ट द पेशेंस ऑफ मुस्लिम्स, और आपने सुना विवेक श्रीवास्तव क्या कह रहे हैं कि क्या गलत है? देखिए प्रणय जी, ये बड़ा अच्छा आपने आज काम किया है कि जब कोई एक बोल रहा हो तो दूसरे का म्यूट कर दिया है, तो इसके लिए तो बड़ा पहले आपका धन्यवाद, थैंक यू। अब जो सबसे जरूरी बात है, क्या हम संविधान के लिहाज से चलेंगे या कुछ लोगों के मन की इच्छा, कुछ लोगों की धमकी, कुछ लोगों के भीड़ का एक जो कहते हैं कि दबाव, उसके आधार पर काम करेंगे? भारत का संविधान भारत की संसद को सर्वोच्च बताता है। क्यों सर्वोच्च बताता है? क्योंकि इस सर्वोच्च के पीछे जनमत है, पीपल्स मैंडेट है, और इस पीपल्स मैंडेट के आधार पर जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं उनकी संसद है। हम लोग यहां बैठकर कोई भी बात करें, लेकिन वो जो संसद है उसी लोकसभा में बाकायदा सदन ने क्या किया, कहा कि इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजेंगे। उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की सिटिंग्स हुई, देश भर के वक्फ से जुड़े, अल्पसंख्यकों से जुड़े, मुस्लिमों से जुड़े अलग अलग जो संगठन है उन्होंने जाकर रिप्रेजेंटेशन दिया, बाकायदा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया, केस स्टडी दिया, बताया कि यहां इस तरह के मसले हैं, उसके आधार पर सारे संशोधन वो सुझाए गए। जो लगा कि नहीं ये तो गलत है, इसमें गरीब मुसलमान का हक मारकर कुछ ठेकेदार मुसलमान जो सत्ता पोषित मुसलमान होते हैं, ऐसा नहीं है, अगर भाजपा भी चाहे तो आज उसके वाले मुसलमान इन संपत्तियों पर कब्जा करके बैठ जाएंगे, कोई कांग्रेस और सपा वाले अब नहीं कर पाएंगे। जैसे कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है तो वहां कांग्रेस के जो सत्ता पोषित मुसलमान हैं वो मौज करेंगे इस पे। ये था किसके लिए भाई? वाकिफ जो होगा, जो वक्फ करता है, वो क्यों करता है? वो इसलिए करता है कि गरीब गुरबा, यतीम, विधवा जो महिलाएं हैं मुसलमानों की, उनका कुछ भला हो जाए, कुछ जो बच्चे हैं, अनाथ हैं, यतीम हैं, उनका कुछ भला हो जाए, पढ़ने लिखने के लिए विद्यालय और अस्पताल खुल जाए। ये ठेकेदारी के लिए, जमीन की, रियल एस्टेट के बिजनेस के लिए है क्या?
और अगर ये कहते हैं कि उससे हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये क्यों होना चाहिए? दुनिया की किसी भी मुस्लिम कंट्री में ये नहीं है। फिर कोई कहेगा कि हम दुनिया के मुस्लिम देशों से क्यों तुलना कर रहे हैं? तो फिर वही, आपको भारत के संविधान में, लोकतंत्र में भरोसा नहीं? क्या भारत की सरकार पर नहीं भरोसा है जिसको आप चुनते हैं? मुझे तो लगता है किसी भी स्थिति में ये वक्फ कानून पूरी तरह से रद्द किया जाना चाहिए। ये देश विरोधी है, संविधान विरोधी है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। और अगर संसद कुछ नहीं कर रही तो या तो आप उस पर स्वीकार करिए, उसके लिहाज से जो संशोधन हो रहा है उसको होने देना चाहिए। जी, अब आप देखिए, आप जब